वेंकट सुब्बा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 33 सर। माननीय मंत्री जी, इनके पटल पे रखा है। पहला सप्लीमेंट्री सुब्बा। Sir, I would like to know from the Honorable Minister if the government has conducted any assessment on the impact of these tourism projects on local employment and economic growth. If so, what are the expected job creation numbers and infrastructure improvements in the selected sites? Supplementary number 1, sir. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन करने से व्हाट एग्जैक्टली इज द जॉब्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड। मुझे लगता है माननीय सदस्य का प्रश्न का संदर्भ जो है, अभी हाल में पिछले 2 महीने पहले जो सैस्की के स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे उसके संदर्भ में होगा। ये अभी क्योंकि प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए हैं उसमें निश्चित रूप से जिन 5 विषयों का हमने संदर्भ लिया है उसमें टूरिज्म इकोसिस्टम, कनेक्टिविटी टू द साइट, कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, इन 4 चीज़ों को प्रमुखता के साथ में रखा है। लेकिन ये तय है कि जब कभी भी जिस जगह पे टूरिज्म पोटेंशियल ग्रो होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैनी फोल्ड जॉब क्रिएशन होता है एंड टूरिज्म इज बीइंग कंसिडर्ड वर्ल्ड वाइज एट द सेकंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर। एग्जैक्ट नंबर एस्टिमेट करना मुझे लगता है इट इज़ सो टू अर्ली, बट निश्चित रूप से इन प्रोजेक्ट्स की साइट्स को जहाँ आइडेंटिफाई किया है हमने फ्यूचर में वहाँ फुटफॉल इंक्रीज हो। मैनी ऑफ द साइट्स विच हैज़ बीन कंसिडर्ड देयर साइट्स आर the alternative tourist destinations from the established destinations. So certainly when we create some infrastructure, tourism infrastructure, or establish a new tourism product, introduce a new tourism product, certainly the job creation with the footfall of the increasing footfall of the tourists, it increases. And I wish and we hope and we expect that that the many-fold job creation is going to happen. Second supplementary. Sir, with the coast 950 kilometers long coast in Andhra Pradesh has huge potential to develop tourism, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, are there any plans by the Ministry to include some of the beach stations to develop under this capital investment development of tourism centers in Andhra Pradesh? And sir, under temple tourism, how many places have been identified in Andhra Pradesh for development under this scheme, sir? Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, tourism is a stateless subject, so primarily the project proposals are to be identified, the projects are to be identified and proposals are to be developed by the state governments. So that beach tourism, if any project is being deemed fit by the state government, they can send the project proposals to the government under the various schemes which are available. Looking towards the finances and the scope, we consider the projects and then we grant the assistance. As far as the Prasad scheme is concerned, which Honorable Member have mentioned about, there are 4 projects in Andhra Pradesh under the Prasad scheme have been sanctioned so far. Development of pilgrim amenities at Amravati, development of Sri Sailam temple, development of pilgrimage amenities at Sri Vardha Lakshmi Narsimha Swami Vari Devasthanam at Simhanchala, development of pilgrimage tourism infrastructure at Annavaram temple town. These projects are all of these projects are complete and financial progress is bearing development of pilgrimage tourism infrastructure at Annavaram temple. All the projects are complete and financial assistance have been provided 100%. Thank you. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। इस प्रश्न में आग्रह का समावेश ज़्यादा है प्रश्न से। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हमारे बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट के अलावा जो शक्ति के केंद्र हैं,
क्या उसके लिए बिहार सरकार की ओर से कोई प्रपोजल आया है? अगर नहीं तो क्या केंद्र प्रोएक्टिव होकर के इस पे कुछ पहलकदमी का विचार कर रहा है? थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचार का सम्मान करते हुए, जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्राइमरीली स्टेट को कंसीव करना होता है। इस तरह का प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर बिहार स्टेट से आता है तो निश्चित रूप से उसका कंसीडर किया जा सकता है। उसे तय नियमों की प्रक्रिया में यदि वो समाहित होता है तो उसे कंसीडर किया जा सकता है। माननीय संसद सदस्य भी जब इस विषय में या इस तरह के विषय में सीधे भारत सरकार को या मुझे इस तरह के पत्र लिखते हैं तो भी हम तय प्रक्रिया के अनुरूप राज्य सरकार को उसके कंसिडरेशन के लिए राज्य सरकार को भेजते हैं। इस तरह का कोई पत्र यदि प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हम राज्य सरकार को उसे भेजने में हम सबको प्रसन्नता होगी। माननीय साकेत गोखले। Thank you, sir. So the question is about the special assistance to states for capital investment, the SASCI scheme. So under this scheme, sir, the union government has given 172 crores to Andhra Pradesh, 147 crores to Bihar, 151 crores to Gujarat, 200 crores to Madhya Pradesh, and 154 crores to Uttar Pradesh. This is according to an answer tabled by the Honorable Minister in the Lok Sabha. So not a single rupee has been given to the state of West Bengal, and the union government has not covered. No, let me come to my question, sir. The union government has not covered a single tourism site in Bengal under this. So my question overall to the minister is, please state why the union government is constantly ignoring Bengal and giving a stepmotherly treatment when it comes to giving union government funds, not just funds we deserve, but also our dues from the central government. थैंक यू। माननीय मंत्री। मैं अत्यंत खेद के साथ में एक विषय को कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने अभी खड़े होकर के भारत सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, हमने 4 बार वेस्ट बंगाल सरकार को लिखित में भेजा, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, उसके बाद में भी बंगाल सरकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया, प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया। और जैसा मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राज्य सरकार को भेजना होता है, मुझे लगता है कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भारत सरकार नहीं कर रही है, कहीं और से इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अपने इसमें घूम करके देखना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर भागवत कराट। Honorable Deputy Chairman, sir, through you, I ask to Honorable Minister, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से नाइट टूरिज्म और हिली टूरिज्म के लिए कुछ फंड्स दिए हैं क्या, इसके मैं जानना चाहता हूँ। नाइट टूरिज्म और हिली एरिया टूरिज्म। माननीय सभापति महोदय, जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, उन प्रोजेक्ट्स में हमारे हिमालयी क्षेत्र में भी निश्चित ही हमने प्रोजेक्ट्स को कंसीडर किया है। नाइट टूरिज्म का स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारे पास में मेरे संज्ञान में अब तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी रात्रि में कहीं टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर या रात को कहीं टूरिज्म ग्रो करने के लिए या किसी तरह की सफारीज ग्रो करने के लिए अगर इस तरह के प्रस्ताव आएंगे तो तय नियमों पर उस पर हम विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 माननीय श्री आदित्य प्रसाद। माननीय मंत्री